Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start chapter 8, Cell the Unit of Life, class 11th. This is the part 1 of this chapter. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is that make an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit life, the cell, in all living organisms. All living organisms are composed of cells. Some are composed of single cell and are called unicellular organisms, while others like us composed of many cells and are called multicellular organisms. What is a cell? अब हम लोग आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक में. व्हाट इज अ सेल? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. तो फर्स्ट सेल लाइव सेल किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन. सेल थ्योरी. In 1838, Matthias Skeldin, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which forms the tissues of the plant. स्केल्डिन जो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स उन्होंने लिए और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बना होता है जो आगे जाके टिश्यू फॉर्म करता है. एट अबाउट द सेम टाइम Theodor Schwann 1839, a British zoologist, studies different types of animal cells. उसी समय पे थियोडर श्वान थे, उन्होंने क्या देखा? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे वो, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल स्टडी करे और उन्होंने देखा कि and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. उन्होंने देखा कि सेल के पास एक thin outer membrane होती है जिसे हम लोग कहते हैं plasma membrane. He concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is the unique character of the plant cell. इन्होंने ही अपनी स्टडीज के बेसिस में प्लांट टिश्यू को ऑब्जर्व किया और देखा कि प्लांट में एक यूनिक करेक्टर होता है जो कि प्लांट सेल्स के पास एक यूनिक करेक्टर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis of the bodies of animal plants are composed of cell and product of cells. इस कंक्लूजन से उन्होंने क्या प्रपोज किया, क्या हाइपोथेसिस बनाई कि जो बॉडीज होती है एनिमल्स और प्लांट की वो सेल और उनके सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई होती है. ये याद रखिए कि हाइपोथेसिस किसने दी, कौन जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था और कौन जर्मन बोटेनिस्ट, और दोनों के ईयर याद रखिएगा. स्केल्डिन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी. इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी बनाई. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. पर इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं. फिर आए रुडोल्फ वर्चू, और फिर रुडोल्फ वर्चू 1855 में उन्होंने पहली दफा एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला. इसका मतलब है कि सेल डिवाइड होते हैं, उसी से नए सेल फॉर्म होते हैं. He modified the hypothesis of Skeldin and Schwann to give a cell theory final shape. Cell theory understood today as all living organisms are composed of cells and product of cells. All cell arise from its pre-existing cells. ये किसने कहा था कि all cell arises from pre-existing cell? रदोल्फ वर्च्यू ने. और इन्होंने ही सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया था. An overview of cell. You have earlier observed cells in
an onion peel and or human cheek. Cells under microscope, let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए. और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जिसे डीएनए कहते हैं, और क्रोमोसोम. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर्स सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. जो सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिन सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उन दोनों में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो वही सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है. The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both plant and animals. What is the main arena of the cellular activity in both plant and animal? That is cytoplasm. Various chemical reaction occur in it, keep the cell in the living state. और इसमें क्या होती है, वेरियस केमिकल रिएक्शन, साइटोप्लाज्म में वेरियस केमिकल रिएक्शन होती रहती ताकि वो एक सेल को लिविंग स्टेट में रख सके. Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles. न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग ने नाम दिया ऑर्गेनेलिस, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. The prokaryotic cell lacks such membrane bound organelles, और prokaryotic cells में ऐसी कोई भी membrane bound organelles नहीं होती. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. Ribosome जो कि एक non-membrane bound organelle है, वो दोनों cells में दिखता है आपको, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में. ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है कि which organelle is found in both eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosomes are not found only in cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria, and on rough endoplasmic reticulum. Within the cell के अंदर राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता है बल्कि हम लोगों को दो और ऑर्गेनेलीज में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि यूकैरियोटिक सेल में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम लोग को राइबोसोम्स मिलते हैं. ये भी क्वेश्चन नीट में एक बार फॉर्म हो चुका है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा और कौन सी ऑर्गेनेलीज में मिलते हैं. एनिमल cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division. एनिमल सेल के पास और भी कोई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती जिन्हें हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम, और जो आगे हेल्प करती है सेल डिवीजन में. सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cell also vary greatly in shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. तो इस पूरे पैराग्राफ में हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो सेल्स होते हैं वो साइज और शेप में डिफर करते हैं अलग अलग. जैसे माइकोप्लाज्मा है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जो कि सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है, और जो बैक्टीरिया है वो हमारा वेरी करता है 3 से 5 माइक्रोमीटर, और जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच. अमंग मल्टीसेलुलर
ऑर्गेनिज्म। आरबीसी के कितना डायमीटर है 7.0, और जो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल्स में फर्क होता है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट सेल है वो एग है ऑस्ट्रिच का, लॉन्गेस्ट है नर्व सेल, सबसे स्मॉलेस्ट है माइकोप्लाज्मा। और सेल्स वेरी ग्रेटली इन शेप, सेल्स शेप में भी वेरी करते हैं। डिस्क, कोई डिस्क शेप होता है, कोई पॉलीगोनल, कोई कॉलमनर, क्यूबॉइड एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन दे परफॉर्म। अब हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं बॉडी के। और अगर आपको नीट में कभी ये क्वेश्चन आता है तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ में से एक ऑप्शन ही दिया जाता है। They are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size. The four basic shapes of the bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, comma-shaped, and spirum, spiral-shaped. Mainly फोर शेप के बैक्टीरिया होते हैं। बेसिलस जो रोड लाइक होते हैं, कॉकस जो स्फेरिकल शेप होते हैं, विब्रियो जो कॉमा शेप्ड होते हैं, और स्पायरम जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक exhibit a wide variety of shapes and function. All prokaryotics have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma. सारे प्रोकैरियोटिक पास सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है सिवाय माइकोप्लाज्मा के। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन नीट में बन चुका है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है, नॉट एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप नहीं होता है। इन एडिशन टू जेनोमिक डीएनए, a single chromosome, circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास डीएनए के जेनोमिक डीएनए के आउटसाइड एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स सर्टेन यूनिक phenotypic characters of such bacteria. जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये कन्फर्म करता है कि एक यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का एक यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। In higher classes you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. ये हम लोग पढ़ेंगे molecular basis of inheritance में। Nuclear membrane is found in eukaryotes. Nuclear membrane eukaryotes में मिलती है। No organelle like the ones in eukaryotes are found in prokaryote except ribosome. जितने भी यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें से कोई भी प्रोकैरियोट में नहीं दिखता एक्सेप्ट राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फ्लॉर्म इन इंक्लूजन अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम्स। ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसे हम मीजोसोम्स कहते हैं, ये खाली प्रोकैरियोटिक के पास होता है। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। Cell envelope and its modifications. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex envelope. Most of the prokaryotic cells या फिर कुछ bacterial cells के पास chemically complex cell envelope होती है। The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure that is the outermost glycocalyx, followed by the cell wall and then the plasma membrane. Cell envelope थ्री टाइटली बॉन्ड लेयर से सराउंडेड होता है। जो सबसे आउटर मोस्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट।
ऑल्दो क्या मतलब तीनों लेयर डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, पर ये तीनों टुगेदर एक साथ प्रोटेक्टिव यूनिट कहलाती हैं. Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. Those that take up Gram stain are called Gram positive and other those do not take up Gram stain are called Gram negative. जो स्टेनिंग के बाद जिसमें स्टेन दिखता है उसे हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं दिखता उसे हम लोग ग्राम नेगेटिव कहते हैं. Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be loose shit called slime layer in some, while in other it may be thick and tough called capsule. ग्लाइकोकैलिक्स का कॉम्बिनेशन और थिकनेस डिफरेंट बैक्टीरिया में वेरी करती है. किसी में वो एज अ लूज शेट होता है जिसे हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं, और किसी में वो थिक एंड टफ होता है जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं. The cell wall determines the shape of the cell and provides strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing. Cell wall क्या करती है, शेप देती है सेल को, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट और कोलैप्स ना हो. The plasma membrane is selectively permeable in nature, interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of eukaryotes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेएबल होती है, जो एक आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, और ये यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होती है. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extension in the form of vesicle, tubulus and lamina. They help in cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cell. मीजोजोम्स जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. दीज एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, वेसाइकल के फॉर्म में दिखते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में दिखते हैं और लैमिना के फॉर्म में दिखते हैं. और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल. दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. ये क्वेश्चन भी नीट में बना हुआ है. जो मीजोजोम्स होते हैं वो किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, आपको 3-4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें से एक इनकरेक्ट बताना होता है. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contains pigment. Prokaryotic में जैसे साइनोबैक्टीरिया में और भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं मीजोजोम की तरह, पर उनके अंदर पिगमेंट फिल होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटोफोर्स. बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल. बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मतलब चल भी सकता है और स्टिक भी हो सकता है एक जगह. इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंट एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजुला. अगर वो मोटाइल है तो उसके पास सेल फ्लैजुला प्रेजेंट होगा जो सेल वॉल से निकलते हैं. बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजुला. बैक्टीरियम फ्लैजुलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. बैक्टीरियम फ्लैजुलम 3 पार्ट से कंपोज होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होता है. Beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play role in motility. Flagella के अलावा भी pili and fimbriae भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, पर वो मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं. The pili are elongated tubular structure made up of special protein. pili elongated tubular structure होते हैं जो एक स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं. The fimbriae are small bristle-like fiber sprouting out of the cell. Fimbriae क्या होते हैं, small bristle-like fibers होते हैं जो सेल से बाहर निकलते हैं. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in stream and also to the host tissue. कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है कि वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किसी रॉक से या किसी होस्ट के टिश्यू से अटैच करने में. फिम्ब्रे के ऊपर भी नीट में एक बार क्वेश्चन फॉर्म हुआ था कि विच स्ट्रक्चर आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, तो इसका आंसर है फिम्ब्रे.
Ribosomes and inclusion bodies. In prokaryotic, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of two subunits, 50S and 30S unit, which when present together form 70S. Prokaryotic ribosomes. Prokaryotic ribosomes are associated with plasma membrane of the cell. Prokaryotic ribosomes प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं. ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक वेरी करते हैं साइज में. दो सब यूनिट से बने होते हैं, 50S एंड 30S. 50S हमारी बड़ी यूनिट होती है, 30S छोटी यूनिट होती है, एक बर्गर की तरह अटैच्ड होती है. टुगेदर इनको हम लोग फॉर्म करते हैं 70S. Ribosomes are the site of protein synthesis, which is the site of protein synthesis, that is ribosome. Several ribosomes may attach to a single mRNA to form a chain called polyribosome or polysomes. The ribosome of the polysome transmit mRNA into protein. जब बहुत सारे ribosomes एक RNA के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो वो पॉलीजोम क्या करता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीजोम, और वो mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है. इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी. जो भी रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो स्टोर्ड होता है साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में. दे आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म. ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होती और साइटोप्लाज्म में ऐसा फ्रीली होती हैं. एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स. इनके एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स. Gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthesis bacteria. गैस वैक्यूल किस किस में मिलते हैं? ब्लू, ग्रीन में, पर्पल में और ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में मिलता है. गैस वैक्यूल के भी ऊपर एक बार नीट में क्वेश्चन बन चुका है पास्ट 10 ईयर्स में. तो पार्ट 1 हम लोग यहीं तक रखते हैं. पार्ट 2 में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू लाइक्ड इट then like and subscribe my channel, and for the NCERT highlights you have to follow my Telegram channel. Thank you.